حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوت کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ اس فتنے کو کچلنے کی کوششیں فرمائی اور صحابہ بھی آپ کے شانہ بشانہ اس جنگ میں شریک رہے۔ ہر دور میں ایسی جماعت پیدا ہوتی رہے گی جو خود حق پر قائم رہے گی، حق کو قائم کرے گی، مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کے الفاظ ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ ہر زمانے میں ایک گروہ حق پر ظاہر ہوگا اور مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن مخالفت کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جس جماعت نے انکار زکات کے فتنے کو کچلنے کی کوشش کی، اسی جماعت کے سرخیلے کارواں کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ زمانہ اور آگے بڑھا، حضرت علی کا زمانہ آیا۔ حضرت علی کے زمانے میں دو باطل فرقے پیدا ہوئے، ایک کو رافضی کہتے ہیں، دوسرے کو خارجی کہتے ہیں۔ رافضیوں نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر ابن خطاب کی فضیلت کا انکار کیا اور خارجیوں نے نبی کے دونوں دامادوں سے نفرت کی، محبت کا انکار کیا۔ اس دور میں جماعت اہل سنت کی پہچان بنی تفضیل الشیخین حب الختن، جو شیخین کی فضیلت کو مانے اور نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرے وہی سچا اور پکا مسلمان ہے۔ اس دور میں جبکہ رافضیت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، خارجیت شباب پر تھی، حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذوالفقار حیدری نے خارجیت کو پھول چٹا کر رکھ دیا، ان کے لاشیں خاک و خون میں بکھرے ہوئے نظر آئے۔ آپ اس پر غور کریں، جتنی باطل جماعتیں پیدا ہوتی ہیں اپنے باطل عقائد و نظریات کو پھیلانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، حدیثیں بیان کرتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو سن لینے سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اپنے عقائد میں سچے ہیں۔ خارجیوں نے اپنے باطل عقیدے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی، حدیث رسول پیش کی۔ انکار زکات کا فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنے باطل عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی، لیکن صدیق اکبر نے، علی مرتضی نے ان کے استدلال کو غلط اور باطل ثابت کر دیا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ جتنی باطل جماعتیں آئیں گی وہ قرآن اور حدیث کا نام لے کر آئیں گی، اس لیے تم ان سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ جو جماعت حق کا ہے اس کے عقائد و نظریات پر چلتے رہنا، کیونکہ ہر دور میں پروردگار عالم ایک جماعت کو حق پر قائم کرے گا، حق پر ظاہر فرمائے گا۔ مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن مخالفت کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، شخصیتوں سے محبت بھی دین کی پہچان بنتی ہے، شخصیتوں سے عداوت اور دشمنی بھی دلالت و گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، آیت المومن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار۔ انصار مدینہ سے محبت کرنا یہ مومن کی پہچان ہے، انصار مدینہ سے عداوت و دشمنی کرنا یہ گمراہ اور بددین اور منافق کی پہچان ہے۔ اور حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اے علی، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تم سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق۔ اس کا مطلب یہ ہوا انصار مدینہ سے محبت یہ دین کی پہچان ہے، انصار مدینہ سے عداوت و دشمنی یہ منافقت کی نشانی ہے۔ حضرت علی سے محبت دین کی پہچان ہے، حضرت علی کی بغاوت یہ دین سے دشمنی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب زمانہ اور آگے بڑھا اور معتزلہ فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے بے شمار باطل عقائد و نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے۔ انہی عقائد و نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، چاند و سورج مخلوق ہے، وادیوں کو حصار مخلوق ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن معتزلہ سے ٹکرانے کی جرات کسی کو نہیں ہوئی، کیونکہ معتزلہ کی پشت پر بادشاہ کا
पंजा था, इसलिए कोई मुअतज़िला के मुकाबले में नहीं आ सका। लेकिन परवरदिगार आलम ने उस फितने को कुचलने के लिए इमाम अहमद इब्न हंबल को पैदा फरमाया। इमाम अहमद इब्न हंबल ने दरबार शाही में खड़े होकर फरमाया, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। जो कुरान को मखलूक मानता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, सलाखों को पीछे डाल दिया गया, बार बार आप पर कुव्वत और ताकत का इस्तेमाल किया गया, आपको मजबूर किया गया कि आप अपने फतवे से पीछे हट जाएं। आप सिर्फ जबान से कहते मुझको अपने फतवे पर अफसोस है, लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल जबलो इस्तिकामत की उस मजबूत चट्टान का नाम है कि बादशाह की पूरी ताकत लग गई। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया, जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा मौजूद है मैं यही फतवा देता रहूंगा कि जो कुरान को मखलूक मानता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जब इमाम अहमद इब्न हंबल का इंतकाल हुआ तो बगदाद में जिस अजीम मैदान में नमाज जनाजा पढ़ी गई, मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात में लिखा है 25 लाख मुसलमानों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इन्नल मुतवक्किल इज़ा अमरा अन युमसहा अल मौज़उल्लज़ी क़ामन नासु फ़ीहि लिस्सलाति अलैहि फ़बलगा मक़ामा अल्फ़ै अल्फ़िन व ख़म्समियति अल्फ़। जब मुतवक्किल का जमाना आया तो उस पूरे मैदान की पैमाइश कराई तो पता चला कि इस मैदान में नमाज जनाजा के वक्त 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की थी। वो असलमा यौम वफ़ातिही 20 अल्फ़म मिनल कुफ़्फ़ार, और 20,000 काफिरों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए। उनसे पूछा गया, अब तक तुम काफिर थे, आज अचानक क्या बात पैदा हुई कि तुम मुसलमान हो गए? उन्होंने कहा, जिस आदमी की नमाज जनाजा में 25 लाख मुसलमान शिरकत करें वो झूठा नहीं हो सकता। जब वो झूठा नहीं हो सकता है तो जिस दीन का प्रचार कर रहा है वो दीन भी झूठा नहीं हो सकता। जिस नबी का कलमा पढ़ रहा है वो नबी भी झूठा नहीं हो सकता। जिस कुरान की तिलावत कर रहा है वो कुरान भी झूठा नहीं हो सकता। इमाम अहमद इब्न हंबल की सच्चाई से दीन मुस्तफा की सच्चाई का हमने अंदाजा लगाया। इसका मतलब यह हुआ कि बात शख्सियतें ऐसी होती हैं कि उनकी सच्चाई से दीन की सच्चाई समझ में आती है, उनकी इस्तकामत से दीन का जलवा नजर आता है, उनकी मजबूती से दीन की मजबूती नजर आती है। जमाना और आगे बढ़ा, जब अकबर बादशाह का जमाना आया, मुगलिया सल्तनत का फुल पावर और सुपर पावर बादशाह था, लेकिन ये अनपढ़ और जाहिल था। इसकी जाहिल खोपड़ी में किसी ने ये बात डाल दी कि हर 1000 साल के बाद एक नए दीन की जरूरत पड़ती है, एक नए मजहब की जरूरत पड़ती है। अब इस्लाम को 1000 साल बीत चुके हैं, इसलिए एक नए दीन की जरूरत है। उसने बहुत सारे मजाहिब का मुताला करवाया और बहुत सी बातों को जमा करके माजून मुरक्कब तैयार किया और इस बातिल दीन को दीन इलाही के नाम से फैलाने की कोशिश की। ताकत के जोर पर हिंदुस्तानियों को मजबूर किया कि दीन इलाही को तस्लीम किया जाए। जो दीन इलाही को नहीं कबूल करेगा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मशाइख थे, लेकिन अकबर से टकराने की किसी को जुर्रत नहीं हुई। अल्लाह ने अकबर के बातिल अकायदों नजरियात की धज्जियां उड़ाने के लिए मुजद्दिद अल-फिसानी को पैदा फरमाया। मुजद्दिद अल-फिसानी ने अकबर के दरबार में खड़े होकर उसके बातिल अकायदों नजरियात की धज्जियां उड़ा दी, उसके बातिल अकायदों नजरियात की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उस दौर में जमाते हक्का की पहचान मुजद्दिद अल-फिसानी से हुई। उस दौर में जमाते अहले सुन्नत की पहचान मुजद्दिद अल-फिसानी से हुई। जमाना और आगे बढ़ा, मुजद्दिद आजम आला हजरत का जमाना आया। आज के जमाने में एक दो नहीं बेशुमार बातिल फितने थे। राफिजियत का फितना, नेशरियत का फितना, कादियानियत का फितना, शमानियादियत का फितना, गैर मुकल्लिदियत का फितना, मौदूदियत का फितना, इस्माइलियत का फितना, इलियासियत का फितना, नदवियत का फितना। इन तमाम बातिल फिरकों के मुकाबले में इमाम अहमद रजा हद सिकंदरी बनकर खड़े हो गए और तने तनहा इन तमाम बातिल फिरकों का मुकाबला किया। उस दौर में जमाते अहले सुन्नत, जमाते हक्का की पहचान आला हजरत इमाम अहमद रजा से कायम हुई। उस दौर में मसलक आला हजरत के जरिए मसलक अहले सुन्नत की पहचान होने। सुभान अल्लाह। हर दौर में पहचान बदलती रही। पहचान के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती।
कल भी हम ही ओरिजिनल मुसलमान थे, आज भी हम ही ओरिजिनल मुसलमान हैं, और सुबह क़यामत तक जो सहाबा के रास्ते पर चलेगा वही ओरिजिनल मुसलमान है। लेकिन कल हमारी पहचान मसलक सिद्दीकी से हो रही थी, मसलक अली से हो रही थी, मसलक इमाम अहमद इब्न हंबल से हो रही थी, मसलक मुजद्दिद अल-फिसानी से हो रही थी, और आज के दौर में दीन हक की पहचान मसलक आला हजरत से हो रही है। इसलिए मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, कोई पांचवा मसलक नहीं, दीन मुस्तफा की पहचान का नाम मसलक आला हजरत है, अहले सुन्नत के निशान का नाम मसलक आला हजरत है। इसलिए मेरे दोस्त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इसलिए मेरे दोस्तों, मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो, और इस शुबहे में न पड़ो कि मसलके आला हजरत कोई नया मसलक है, मसलके आला हजरत कोई नया फिरका है, मसलके आला हजरत कोई पांचवा मसलक है। ये प्रचार तो वो लोग कह रहे हैं जिनके दिलों में मसलक आला हजरत की मोहब्बत नहीं है, मसलक आला हजरत के वास्ते से आला हजरत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। इसलिए जिनको आला हजरत हजम नहीं हो रहे हैं वही मसलक आला हजरत की मुखालफत कर रहे हैं, वरना बड़े बड़े मशाइख ने मसलक आला हजरत की हक्कानियत का ऐलान किया है। अल्लामा सैयद अलवी मालिकी फरमाते हैं, नहनु नारिफुहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही, हुब्बुहु अलामतुस सुन्निया व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअ। हम इमाम अहमद रज़ा को उनकी तस्नीफात और तालीफात के जरिए पहचानते हैं। उनसे मोहब्बत करना सुन्नी होने की दलील है, उनसे अदावत और दुश्मनी करना यह बिदअती और गुमराह होने की दलील है। और अल्लामा सैयद मोहम्मद मगरिबी जज़ायरी फरमाते हैं, इज़ा जाअ रजुलुन मिनल हिंद फसअलनाहु अनिल इमाम अहमद रज़ा। जब हिंदुस्तान से हमारे पास कोई हाजी आता है और हमको उसकी सुन्नियत को परखनी होती है, जांच करनी होती है, तो उसके सामने हम आला हजरत का नाम लेते हैं और गौर से उसके चेहरे को देखते हैं। अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरा खुश हो जाता है, चेहरे पर बशाशत जाहिर होती है, फालिमना अन्नहु मिन अहली सुन्नत वल जमाअ, हम समझ जाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत से है। और अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरा बिगड़ जाता है, फालिमना अन्नहु मिन अहलिल बिदअ वद दलाला, हम समझ जाते हैं कि ये बिदअती और गुमराह है। हाज़ा हुवा मेयार इंदना, यही हमारे नजदीक सुन्नियत को पहचानने का मेयार है। जब उनके नजदीक यही मेयार है तो हमारे नजदीक भी यही मेयार है। आज कोई भी हमारे सामने आए, चाहे हाशमी हो, चाहे मदनी हो, चाहे अरबी हो, चाहे करशी हो, चाहे बगदादी हो, चाहे अजमेरी हो, चाहे बदायूनी हो, कोई भी हो, जब तक मसलक आला हजरत को तस्लीम नहीं कर लेगा उस वक्त तक हम पक्का मुसलमान नहीं मानेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मसलक आला हजरत की हक्कानियत पर बोलूं तो बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी। यहाँ मुझसे अच्छे अच्छे खुतबा मौजूद है। मौलाना मुफ्ती शहजाद साहब पूरे हिंदुस्तान को झिझोड़ रहे हैं जी, माशा। मुफ्ती गुलजार साहब हैं, ऐसी शार्ट और स्वीट अनाउंसरी करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को मैं कहता हूं अनाउंसर अगर कोई है तो वो मुफ्ती गुलजार। क्या बात है। अगर अनाउंसरी कराना तो उनको बुलाओ, नहीं तो किसी तालिब इल्म को खड़ा कर दो, वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तो मसलक आला हजरत पर कायम रहो। और आला हजरत की एक महसूस मिसाल भी आपके सामने पेश कर दे। मसलक आला हजरत से इस दौर में कितना फायदा हो रहा है उसको भी आप सुन लें। आपके सामने अगर कोई अजनबी आदमी आ जाए, चेहरे मोहरे से वो मुसलमान लगे, आपके दिल में दगदगा रहेगा कि पता नहीं शिया है कि सुन्नी है। अगर आप उससे पूछें कि किस मसलक से ताल्लुक रखते हो, वो कह दे कि मैं सुन्नी हूं, तो आप इतना तो मुतमईन हुए कि वो शिया नहीं है, लेकिन फिर भी दगदगा बाकी है, क्योंकि सुन्नियत का लेबल और टाइटल लगाकर बहुत सारी जमातें घूम रही हैं। आपके दिल में ये वसवसा पैदा होगा कि पता नहीं कौन सुन्नी है। वो सुन्नी है जो मिलाद का इनकार करते हैं, इल्म गैब का इनकार करते हैं, तवस्सुल का इनकार करते हैं, अकीदा खत्म नबुव्वत का इनकार करते हैं, शफाअत का इनकार करते हैं, मिलाद सलाम क़याम फातिहा का इनकार करते हैं। या वो सुन्नी है जो
ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ اس کی تحقیق کے لیے پوچھیں گے کہ صاحب آپ کون سے سنی ہیں، آپ دیوبندی ہیں کہ بریلی ہیں، تو وہ کہہ دے کہ میں بریلوی سنی ہوں، میں مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوں، تو آپ کے دل سے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہ علم غیب کو بھی مانے گا، حاضر و ناظر کو بھی مانے گا، شفاعت کو بھی مانے گا، عقیدہ توسل کو بھی مانے گا، میلاد، سلام، قیام، فاتحہ کو بھی مانے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت والا ان عقائد و معمولات کا منکر نہیں ہوتا، ان عقائد و معمولات کو تسلیم کرتا ہے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر